Assalamu alaikum, dear students. I am Anjum Shafiq, your biology teacher for grade 10. And today I am going to discuss the flow of materials with you. Now let's move to the board. So, dear students, previously we discussed the flow of energy और आज हम डिस्कस करना है फ्लो ऑफ मटेरियल्स. So, dear students, the materials in an ecosystem flow through food chains, number one, and food webs. Food chains and food webs. So first of all, we will discuss what is a food chain. So dear students, food chain, it is a series of organisms within an ecosystem. मीन्स कि एक इकोसिस्टम के अंदर ये मौजूद होते हैं, ये ऑर्गेनिज्म, सीरीज ऑफ ऑर्गेनिजम्स विद इन एन इकोसिस्टम इन विच an organism feeds on one before it and is fed by one after it. मीन्स के ये एक ऐसी सीरीज ऑर्गेनिजम्स की एक इकोसिस्टम के अंदर जिसमें एक ऑर्गेनिज्म वो खाता है दूसरे ऑर्गेनिज्म को जो बिल्कुल उसके सामने पड़ा हुआ है, वो जो उसके बिल्कुल चेन में फ्रंट पे पड़ा हुआ है, और उसको भी जो है वो कोई खाता है जो उसके पीछे होता है. इट फीड्स ऑन वन बिफोर इट, जो उसके बिल्कुल सामने पड़ा है उसको खाता है, एंड इज फेड बाय द वन आफ्टर इट, और जो उसके पीछे वाला ऑर्गेनिज्म है वो इसको खा जाता है. सो मीन्स देयर इज अ मैकेनिज्म ऑफ प्रीडेशन एंड प्रे. So here comes the mechanism of predation. और dear students, predation क्या चीज़ है? It is an interaction. ये आगे चलकर हम डिस्कस भी करेंगे, अगले टॉपिक्स में आएगा ये. It is an interaction between two different species in which one is large, जो कि यूजुअली क्या कहलाएगा? प्रीडेटर, एंड अदर इज स्मॉल विच इज द विक्टिम, जिसको हम कहते हैं प्रे. तो आमतौर पर इस मैकेनिज्म के अंदर एक बड़ा एनिमल होता है और एक छोटा एनिमल होता है, या एक बड़ा ऑर्गेनिज्म होता है, एक छोटा ऑर्गेनिज्म.
बड़ा वाला आमतौर पर प्रीडेटर होता है। प्रीडेटर उसे कहते हैं जो किल करके खाता है, प्रीडेशन। और जो मारा जाता है या जिसको खा लिया जाता है वो साइज में भी छोटा होता है और वो प्रे प्रे कहलाता है। प्रे मीन्स शिकार और प्रीडेटर मीन्स शिकारी। तो जो शिकारी होते हैं वो साइज में बड़े होते हैं और जो शिकार होते हैं वो साइज में आमतौर पर यूजुअली दे आर स्मॉल इन साइज। तो यहाँ पर एक फूड चेन, एक सादा सी फूड चेन ड्रॉ करता हूँ। Here we have some grasses. So dear students, a grass क्या है? It's a plant. और प्लांट के ऊपर कौन फीड करता है? Yes, the herbivores. So here is a herbivore. इसको पहले ड्रॉ कर लो, फिर आपको समझाता हूँ। एक सादा सी फूड चेन है ये। यू शुड ऑल्सो नीड टू ड्रॉ इट। आपको भी ड्रॉ करनी आनी चाहिए। Now here comes the big one. So dear student, this is a simple food chain. Now I am going to label it. This is grass. This is grasshopper. And this one is sparrow. And this one is a hawk. So dear students, अब मुझे बता सकते हैं कि हमने जो लेवल्स पढ़े थे, ट्रॉफिक लेवल्स, तो उसमें इनका क्या क्या लेवल बनेगा? So this one is the T1 और T1 कौन सा था dear students? This is the level of producers. And remember one thing, the producers, they make the base of an ecosystem. They make the base of any ecosystem. हर ecosystem की base के ऊपर dear students ये producers ही होंगे. Next level is the T2 level. T2 level, they are the herbivores. So dear students, what are herbivores? Herbivores उनको कहते हैं जो plant kingdom के ऊपर feed करते हैं. So means के all the plants, जितने भी plants होते हैं उनके ऊपर feed कर सकते हैं. So grasshopper, it feeds on the grass. So grasshopper, it is a herbivore, and herbivores, they are present at the T2 level, or T2 means this is the second level of food, which is हम कहते हैं the trophic level 2. And this grasshopper is eaten or preyed upon by the sparrow, which is present at the T3 level,
or the trophic 3 level, and she is a carnivore. Dear students, ये कौन सी कार्निवर होगी? प्राइमरी. So she is a primary carnivore, and this is a T4 level. That is a hawk, and he or she might, जो he भी हो सकता है, she भी हो सकता है. It's a secondary carnivore. So this is a very simple food chain, dear students. Dear students, यहाँ पर एक और चीज़, जो फूड चेन्स होती हैं उसमें आपने इस चीज़ का जिक्र ज़रूर करना है. मैंने यहाँ पर इनकी डायग्राम के साथ कर दिया, आपने अलहदा से इसके हेडिंग बनाकर और इस चीज़ को बताना है. जो ट्रॉफिक लेवल्स इन अ फूड चेन, कि फूड चेन के अंदर कितने ट्रॉफिक लेवल्स हो सकते हैं. सो डियर स्टूडेंट्स, ये भी चीज़ याद रखनी है, एक फूड चेन के अंदर आम तौर पर T4 to T5 यानी 4 से 5 ट्रॉफिक लेवल्स हो सकते हैं. जैसे कि इस वाली फूड चेन के अंदर 4 ट्रॉफिक लेवल्स मौजूद हैं. और याद रखना है कि जितने भी प्रोड्यूसर्स होंगे डियर स्टूडेंट्स, वो हमेशा बेस पे ही रहेंगे. दे विल बी एट द बेस ऑफ द इकोसिस्टम. यहीं से सारी कहानी आगे शुरू होती है. सो डियर स्टूडेंट्स, ट्रॉफिक लेवल्स कितने होंगे? T1, then there is T2, T3, T4 and T5. यहाँ पर दोबारा इसलिए लिखा कि आपको एक चीज़ समझा सकूं कि जितनी छोटी फूड चेन होगी उतना ज़्यादा मटेरियल्स का और एनर्जी का, दोनों का फ्लो होगा. क्लियर? जितनी लंबी फूड चेन होगी तो एंड वाले ऑर्गेनिजम्स तक जो एनर्जी पहुँचते पहुँचते वो कम रह सकती है या फिर समटाइम्स वो पहुँच ही नहीं पाती. सो इसलिए द शॉर्ट food chains are more stable than the large food chains. और उसकी रीज़न आपको बता दी, बिकॉज कि अगर 3 से 4 ही लेवल हैं तो आसानी के साथ ये मटेरियल जो हैं वो फ्लो हो सकते हैं. क्योंकि हमने ये बात की थी कि एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल तक पहुंचते हुए डियर स्टूडेंट्स वहाँ पर अच्छा खासा एनर्जी का लॉस होता है. अप्रोक्सीमेटली 90% ऑफ द एनर्जी इज लॉस्ट, only 10% of the energy is consumed, which remains in the tissues of the animals or the organisms. So इस वजह से जितनी ज़्यादा लंबी फूड चेन होगी तो एंड तक पहुँचते वो हर किसी का 90% निकाल के और 10% रख के अपनी बॉडी टिश्यूज़ के अंदर, तो वो एंड तक पहुँचते वो बिल्कुल थोड़ी एनर्जी रह जाएगी या समटाइम उन तक पहुँच ही नहीं पाएगी. सो दिस इज़ अ सिंपल फूड चेन. और डियर स्टूडेंट्स, इसमें वो फ्लो किस तरह से होगा? एज इट इज़ गिवन इन आवर बुक, फ्लो इज़ फ्रॉम प्रोड्यूसर्स to primary consumers. अगर हम कंज्यूमर्स के लेवल की बात करें, सो प्राइमरी कंज्यूमर्स, और फिर प्राइमरी कंज्यूमर्स से डियर स्टूडेंट्स इट मूव्स ऑन टू द सेकेंडरी कंज्यूमर्स, and after the secondary consumers it is moved on to the tertiary consumers. So this is the flow of materials within a food chain of an ecosystem. तो ये तरतीब आपने याद रखनी है. ये MCQs में भी पूछी जा सकती है, शॉर्ट क्वेश्चन से के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपसे पूछी जा सकती है. राइट ऑन द फ्लो डायग्राम और द सीक्वेंस ऑफ
the flow of materials within the food chain. तो फूड चेन में किस तरह से वो एनर्जी फ्लो करती है या किस तरह से जो मटेरियल्स हैं वो फ्लो करते हैं, तो उसमें आपने ये तरीक़ेकार इन स्टेप्स के अंदर आपने उनको एक्सप्लेन करना है। और डियर स्टूडेंट्स, एक और चीज़, जितने भी हमारे पास इकोसिस्टम्स हैं उसमें इतनी सादा चेन्स नहीं है जितनी मैं यहाँ पर आपको हमने एग्जांपल्स में शो करवाई, क्योंकि बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो एक से ज़ायद खुराकों के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। अब ज़रूरी नहीं है कि हर वक्त इस हॉक को चिड़िया ही मिल जाए, चिड़िया तो कभी कभार मिल सकती है या डेली रूटीन के बेसिस के ऊपर इसका शिकार नहीं हो सकता। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, ताकि बाद में एक चीज़ रहना चाहिए, इसको मैं एक्सप्लेन करता चलूँ जो हमने यहाँ पर डेफिनेशन की थी। हेयर इट इज़ अ सीरीज ऑफ ऑर्गेनिजम्स। सो ये सीरीज़ है ऑर्गेनिजम्स की, एक विद इन एन इकोसिस्टम, एक इकोसिस्टम के अंदर, इन विच एन ऑर्गेनिज्म फीड्स ऑन, किसके ऊपर फीड कर रहा है? द वन बिफोर इट, ये इसके पीछे है, इसके ऊपर फीड कर रहा है, एंड इज फेड बाय द वन आफ्टर इट, और ये खाया किससे जा रहा है? जो इसके बिल्कुल इमीडिएटली पीछे है। इससे पहले कि ये खाया जाए ये इसके ऊपर फीड कर लेता है। तो ये डेफिनेशन आपको क्लियर हुई कि इट इज अ सीरीज ऑफ ऑर्गेनिजम्स इन विद इन एन इकोसिस्टम इन विच एन ऑर्गेनिज्म फीड्स ऑन वन। ये किसके ऊपर फीड कर रहा है? ऑन वन बिफोर इट एंड इज फेड बाय द वन आफ्टर इट। जो इसके बाद है उसके वो इसको खा जाएगा, वो इसका ये वाला ऑर्गेनिज्म ये इसका शिकार है। इट मीन्स कि ये ऑर्गेनिज्म यानी कि ग्रास होपर या ये स्पैरो, ये एट द सेम टाइम ये प्रीडेटर भी है और एट द सेम टाइम ये प्रे भी है। क्लियर? मतलब ये खा भी रहा है और खाया भी जा रहा है। इसी तरह से ये स्पैरो, ये भी एट द सेम टाइम इट इज अ प्रीडेटर एज वेल एज प्रे, यानी ये इसको खा रही है ग्रास होपर को, लेकिन एट द सेम टाइम इट इज ऑल्सो बीइंग ईटन बाय द हॉक। क्लियर? सो इस तरह से हम इनको कैटेगराइज करते हैं। होपफुली ये आपको सारी सीरीज समझ आ गई है। सो डियर स्टूडेंट्स, आपने देखा कि जो फूड चेन्स होती हैं वो इतने सादा नहीं होती हैं जितने कि हमने यहाँ पर समझाने के लिए उनको आपस में लिंक किया। और अगर ये लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर आ जाए तो डियर स्टूडेंट्स आपने डायग्राम के साथ इसको एक्सप्लेन करना है। डेफिनेशन, देन डायग्राम एंड देन एक्सप्लेनेशन। सो होपफुली फूड चेन्स आपको क्लैरिफाई हो गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में फूड वेब के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।